Hello and welcome to Easy Olympiad Maths. In this video, I have summarized lines and angles chapter for class 7. Learn the basic concepts of angles like supplementary angles, complementary angle and adjacent angles. So I have explained these angles with well explained diagrams and examples. So stay tuned for more such videos on the channel. So what are adjacent angles? Let's see. Adjacent angles are angles which are joined by a common side and a common vertex. So these two angles are adjacent angles which are joined by a common side and a common vertex. So एग्जांपल्स देखिए, ये एक पिज्ज़ा स्लाइस है, ठीक है, ये जॉइन है इस कॉमन साइड से और कॉमन वर्टेक्स से, तो ये एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं. तो एडजेसेंट एंगल्स का ये एक एग्जांपल है. सेकंड एग्जांपल यहाँ देखिए, ये कॉमन साइड है और ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं यहाँ पर, ठीक है. तो ये दो एडजेसेंट एंगल्स, उनकी ये कॉमन साइड और ये कॉमन वर्टेक्स. सो एडजेसेंट एंगल्स हमेशा जुड़े हुए रहेंगे कॉमन साइड और कॉमन वर्टेक्स के थ्रू. नाउ व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? Two angles are called complementary angles if their sum is 90 degree and each angle is the complement of the other. तो टू एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ईच एंगल इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर. सो इन दिस फिगर ये एंगल एक्स ओ जेड है 30 डिग्री और जेड ओ वाई है 60 डिग्री. तो 30 प्लस 60 इज 90 डिग्री. तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है. ये एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. तो सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 90 डिग्री. इफ वन एंगल इज एक्स द अदर एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है. अगर एक एंगल x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स. तो यहाँ पर अगर एक एंगल 30 दिया हुआ है और ये एंगल नहीं दिया हुआ है तो दूसरा ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 60. और अगर 60 दिया हुआ है और 30 नहीं दिया हुआ है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस 60 30, क्योंकि इन दोनों का सम है 90 डिग्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम होता है 90 डिग्री. Let's see the real life example of complementary angles. So see this gate here. So these two angles are complementary angles as they add up to 90 degree. तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री बन रहे हैं, तो ये दोनों complementary angles है, ठीक है. ये वुडन बोर्ड जब यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, दिस वुडन बोर्ड व्हेन ज्वाइंड हियर दे फॉर्म complementary angles. So these two are complementary angles. तो ये रोड जैसे यहाँ टर्न हो रहा है तो ये भी complementary angles form कर रहा है. So these two angles are complementary angles. So these are the real life example of complementary angles whose sum is 90 degree. Complementary angles can be adjacent complementary angles and non-adjacent complementary angles. Now what are adjacent complementary angles? Those angles which are joined by a common side and a common vertex. These are adjacent complementary angles. So they are joined by a common side and a common vertex. So 59 plus 31 is 90 degree. So they are adjacent complementary angles. और यहाँ पर देखो नॉन एडजेसेंट क्या होते हैं, जो आपस में जुड़े हुए नहीं है बट दे आर नॉट एडजेसेंट बट देयर सम इज 90 डिग्री. इन दोनों का सम 90 डिग्री है. यहाँ पर भी 50 प्लस 40 इज 90. सो दे आर एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. जो आपस में जुड़े हुए नहीं होते वो नॉन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. Let's see one example of complementary angles. So see this figure. In this, angle x is given and angle 38 degree is given. So you have to determine the missing angle x, and these two are complementary angles. So as we know, sum of two complementary angles होते हैं 90 degree. Here one angle is 38 degree, other angle is x. So x plus 38 equals to 90 degree. This is the property of complementary angles. Now x will be 90 minus 38 equals to 52 degree. So this is one example of complementary angles, how question comes on a complementary angle. Let's see one more example. The difference between two complementary angles is 48 degree. Find both the angles. Now दो complementary angles का difference दिया हुआ है 48 degree. हमको दोनों angle find करने हैं. तो let one angle be x, other angle will be 90 minus x. तो ये दोनों एक दूसरे के complement होंगे. एक angle x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 minus x. गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन टू एंगल इज 48 डिग्री. अब इन दोनों का डिफरेंस हमको 48
डिग्री दिया हुआ है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 90 माइनस एक्स वन एंगल है, माइनस एक्स इज द अदर एंगल, और इनका डिफरेंस है 48 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 90 डिग्री माइनस 2x इक्वल्स टू 48 डिग्री, माइनस 2x इक्वल्स टू 48 माइनस 90, माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 42 और x इक्वल्स टू 42/2 एंड x इक्वल्स टू 21। तो एक एंगल आ गया हमारे पास 21, तो अदर एंगल विल बी 90 माइनस दैट इज 90 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 69। तो इस तरह अगर हमको सम या डिफरेंस दिया हुआ है तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। What are supplementary angles? Two angles are called supplementary angles if their sum is 180 degree. तो दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, एंड ईच एंगल इज द सप्लीमेंट ऑफ द अदर। नाउ in this figure XOZ plus YOZ equals to 180 degree. So XOZ is 120 degree and YOZ is 60 degree. So 120 plus 60 is 180 degree. So they are supplementary angles. तो जो भी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ वन एंगल इज एक्यूट द अदर इज ऑब्ट्यूज। अब यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है एक्यूट एंगल और 120 डिग्री है ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर एक एंगल एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। इफ वन एंगल इज 90 डिग्री द अदर एंगल विल ऑल्सो भी 90 डिग्री, और अगर एक एंगल 90 डिग्री है राइट एंगल है तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम हमको 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स में। So sum of two supplementary angles is 180 degree. If one angle is x, the other angle will be 180 degree minus x. सप्लीमेंट्री एंगल्स भी एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं और नॉन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स which are joined by a common side and a common vertex. So these two are adjacent supplementary angles. 65 degree plus 115 degree is 180 degree. तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इनका सम 180 डिग्री है, तो ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और ये नॉन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स है क्योंकि इनका सम है 180 डिग्री बट दे आर नॉट जॉइंट थ्रू अ कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड। तो एक साइड और वर्टेक्स से जुड़े हुए नहीं है, तो ये नॉन एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल, डिटरमाइन द मिसिंग एंगल। तो यहाँ पर एंगल x दिया हुआ है और 80 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो 80 डिग्री प्लस x कितना होता है 180 डिग्री। तो सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। हियर वन एंगल इज 80 डिग्री, अदर एंगल इज x. So x plus 80 equals to 180 degree. So x will be 180 minus 80 and x will be 100 degree. So if one angle is given, we can find the other angle by subtracting it from 180. So 180 minus 80 will be x. Let's see one more example. The measure of an angle is 120 degree. What is the measure of its supplementary angle? तो एक एंगल का मेजर दिया हुआ 120 डिग्री. What is the measure of its supplementary angle? Let x be the measure of the supplementary angle to 120 डिग्री. ठीक है, जो supplementary angle है उसका measure suppose x है. As we know, sum of two supplementary angles is 180 degree. Now sum of two supplementary angles is 180 degree. Here x and 120 degree are supplementary angles. So x plus 120 degree equals to 180 degree. Now x will be 180 minus 120 and x will be 60 degree. तो यहाँ पर हमें एक एंगल दिया हुआ था और हमको इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच विल बी x इक्वल्स टू 60 डिग्री। Thanks for watching the channel. If the video is useful, like, share and subscribe, and stay tuned on the channel to learn more basic concepts of maths.